afternoon to all. ब्रीफिंग चल रही है. I will just give a brief summary of issues that the media has been asking MEA, and perhaps you would like to know as to what are those MEA-related issues. Now, first of all, I'll start with evacuation of foreign nationals from India to various parts of the world on the request of foreign governments. So far, we have successfully evacuated, as of today, 20,473 foreign nationals have been evacuated. And this involves several countries. This is an ongoing process. 20,473 foreign nationals have been evacuated as of yesterday. And this is an ongoing process. We are receiving excellent cooperation, and it's all government effort. All the departments that have been involved are doing it in a very coordinated manner, including great support from MHA. The state governments are also involved in this evacuation. So it's a very successful effort from the Government of India on this front. Some questions also have come with regard to Indians abroad. Now, this is still a situation where we cannot give a definite answer because lockdown is still there. We need to assess this situation maybe closer to the date, and it will be a government decision in terms of how we manage the return of Indians. But let me assure you all that our ambassadors, our high commissioners in all these countries are in regular touch with the Indians abroad. They are being guided. There are helplines, and there's constant interaction with them, giving all support to them. MEA also, as you are aware, we have set up a control room, the COVID control room, where the helplines are active. We have a full team that is taking calls and guiding them in these matters. So, situation is under control, and we will review at a later stage about the return. The third item that has come into focus is about the hydroxychloroquine, the export of it. As you all are aware, the certain medicines were on restricted list, keeping in view the domestic situation, and few of them are in the prohibited list. I think this was reviewed over a period of time by the Committee of Secretaries, and the group of ministers also took decisions, keeping in view the domestic requirement, the domestic priorities, and then these were gradually relaxed. So a lot of medicines were lifted, keeping in view the domestic situation, but there is still hydroxychloroquine, which is in high demand globally. But I must bring it to your notice that a lot of requests on hydroxychloroquine are already there. Several countries have made requests for this particular item, and taking into view the domestic necessities and requirements, the domestic stock availability, and keeping a sufficient buffer for our own requirement, a decision was taken by the group of ministers to release some of the medicine, surplus medicine, for export purposes. So this is again an ongoing process. The first batch of the first list of countries have been approved, and the products have started to leave. So now we are working on the second list and subsequently the third list. But let me again underline and emphasize that the domestic requirement and necessity will be a priority for the government. So I will stop here as far as MEA is concerned. If you have any other question, I'll come back.
Thank you. Thank you. Representative of the Ministry of Home Affairs. तो गृह मंत्रालय की तरफ से मेरी अपडेट आज की ये है कि लॉकडाउन का इन्फोर्समेंट पूरे देश में चल रहा है। अर्बन लोकल बॉडीज़ ने हॉटस्पॉट में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए अपने एफर्ट्स को और भी बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने आज फिर से राज्य सरकारों को पत्र लिखते हुए कहा है कि लॉकडाउन का एनफोर्समेंट सुचारू रूप से करें, विशेषकर आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए। 9 अप्रैल को जो राज्य सरकारों से हमें जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार आज देश में 37,978 रिलीफ कैंप्स और शेल्टर्स द्वारा 14.3 लाख स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स एवं अन्य ज़रूरतमंद लोगों को आश्रय प्रदान किया जा रहा है। इसमें से 34,000 से ज़्यादा रिलीफ कैंप्स राज्य सरकारों ने लगाए हैं और करीब 3,000 कैंप्स NGOs ने लगाए हैं। देश में लगभग 26,225 फूड कैंप्स भी लगाए गए हैं, जिनमें 1 करोड़ से ज़्यादा व्यक्तियों को भोजन दिया जा रहा है। इनमें लगभग 14,799 फूड कैंप राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए हैं और 11,426 फूड कैंप्स NGOs द्वारा लगाए गए हैं। कुल 16.5 लाख वर्कर्स को आश्रय एवं भोजन उनके एम्प्लॉयर्स और इंडस्ट्रीज द्वारा दिया जा रहा है। कल माननीय गृह मंत्री जी ने भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा की समीक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल्स के साथ VC द्वारा की। उन्होंने आदेश दिया कि बॉर्डर पर सतर्कता और भी बढ़ा दी जाए, खासकर उन एरियाज़ में जहां फेंसिंग नहीं है और कोई भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट अलाउ नहीं। बॉर्डर एरियाज़ में जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उनको भी कोविड-19 एवं इसके रोकथाम के बारे में जागरूक करें। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि ज़िला प्रशासनों के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल्स कोऑर्डिनेट करें और ये इंश्योर करें कि कोई भी इनएडवर्टेंटली बॉर्डर फेंसिंग के उस पार ना जाए। धन्यवाद। Representative of the Health Ministry, please. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोविड की इस लड़ाई को लड़ने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ 15,000 करोड़ रुपए का एक स्पेसिफिक पैकेज अनाउंस किया गया है। वह पैकेज है कोविड-19 इमरजेंसी एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज। इस पैकेज के तहत हम स्टेट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ कि उनका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा सके, कैसे वे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाएं, कैसे कोरोना रिलेटेड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को अपग्रेड किया जाए, लॉजिस्टिक्स जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, आइसोलेशन बेड्स, ICU बेड्स को कैसे हम स्टेट लेवल पर और एडिशनल संख्या में प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ ही इस पैकेज के द्वारा मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी की जा सकती हैं। साथ ही जैसे आप लोगों की नॉलेज में भी है कि हमारे को ज़रूरत होगी कि आज भी ऐसे केसेस आएंगे पेशेंट्स के लिए जहां ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एज ए लाइफ सेविंग इवेंट की ज़रूरत है। तो उस समय में हमारे ब्लड बैंक किस तरह से काम करें, क्या प्रिकॉशंस लें, उससे संबंधित भी एक डिटेल्ड गाइडलाइंस हमने मंत्रालय की तरफ से इशू की है। इसके साथ ही वेंटिलेटर्स, फेस मास्क, सर्जिकल मास्क, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और कोविड-19 की टेस्ट रिलेटेड इनपुट को, ताकि उनकी भी द्वारा हम एडिशनल को और हेल्थ सेंसेशनल उनको फैसिलिटेट कर सके, उनकी सप्लाई को हम ऑगमेंट कर सकें, इसके लिए इनको कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेंस से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। हॉस्पिटल्स को डिफरेंट एरियाज में PPEs किस समय कैसे टाइप से यूज़ करने चाहिए, हाई रिस्क, लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क प्रांतों में किस किस टाइप के प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उससे संबंधित एक वीडियो टूल भी बनाकर हमने वेबसाइट पर और साथ में कम्युनिटी लेवल पर प्रचार के लिए हम लोगों ने उसको दिया है। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेग्नेंट और लेबर मैनेजमेंट से संबंधित जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनकी गाइडेंस के लिए भी एम्स द्वारा देशव्यापी एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसको काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब तक 503 पीपल हैव रिकवर्ड और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। कन्फर्म केसेस की संख्या देखें
तो कल से आज तक में 678 नए केसेज आए हैं, जिससे कि टोटल संख्या 6412 केसेज हो चुकी है। टोटल 199 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से कि 33 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन लास्ट सिंगल डे। इसके साथ ही आज माननीय हेल्थ मंत्री जी ने स्टेट के सभी माननीय हेल्थ मंत्रियों के साथ और डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कोविड से संबंधित समीक्षा की थी, जिसमें उन्होंने कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल और प्रिपेयर्डनेस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस के ऊपर डिटेल चर्चा की, जिसके तहत सभी स्टेट्स ने इंश्योर किया कि वे हर तरह से सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हैं। जैसे मेरे सीनियर कुलीग ने इससे पहले हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के बारे में बताया, मैं आप लोगों को फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो प्रोजेक्शन किया उसके हिसाब से जो हमारे क्लाइंटेल है इन टर्म्स को जिनको हमें ये पर्टिकुलर दवाई देनी है, वह है हेल्थ वर्कर जो कि कोविड पेशेंट से डील कर रहे हैं, जो आईसीयू केसेस से डील कर रहे हैं और जो फर्स्ट लेवल ऑफ हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं जो कंफर्म केसेस के हैं। तो उनके लिए हमने जो प्रोजेक्शन किया तो हमें करीब 1 करोड़ टैबलेट की जरूरत होगी, जो आने वाले एक हफ्ते को अगर आप मिलाएं। और हमारे पास आज भी 3.28 करोड़ टैबलेट्स अवेलेबल हैं। यह मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि जितनी हमारी प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट है इस टाइम, उसके 3 गुना से ज्यादा टैबलेट देश के पास आज डोमेस्टिक यूज के लिए अवेलेबल हैं। इसके साथ ही एडिशनल रिक्वायरमेंट अगर हम मंथ एंड तक प्रोजेक्ट करें तो उसमें करीब 1.6 करोड़ टैबलेट्स की अगर जरूरत होती है तो 3.28 करोड़ तो हमारे पास ऑलरेडी आज अवेलेबल हैं, जो कि हमारी मंथ एंड की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगी। उसके अलावा भी 2 से 3 करोड़ एडिशनल सप्लाई का टाई अप करके देश के लेवल पर रखा गया है। यह मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई फील्ड में कोई डाउट ना हो। देश की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैज बीन 100% इंश्योर्ड, नॉट इवन फॉर टुडे बट आने वाले समय के लिए भी यह प्रोडक्शन इंश्योर करके रख लिया गया है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि फिजिशियन की प्रेस्क्रिप्शन पर यह दी जा सकती है, तो उसके लिए भी 2 करोड़ टैबलेट फील्ड स्थाई पर स्टेट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्राइवेट सेक्टर द्वारा भेजी जा चुकी हैं। एक इश्यू और मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, वह यह है कि लैब टेस्टिंग के बारे में हम बात करते हैं तो मेरी आप सबसे एक ही विनती है कि अगर आप देखें जनवरी में हमने एक लैब से अपना कार्य शुरू किया था, उस लैब को हमने 15 लैब तक बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते आज सिचुएशन यह है कि देश में पब्लिक सेक्टर में ही 146 लैब्स हैं और 67 प्राइवेट लैब्स हैं, जिनके करीब 16,000 से प्लस कलेक्शन सेंटर्स हैं। तो यह प्रोसेस भी जिस टाइप की इमरजेंसी से हम डील कर रहे हैं उस समय में भी हम देखें तो 2 या 3-2.5 लैब की पर डे की प्रगति से हमने लैब्स का जो गवर्नमेंट सेक्टर में ही अपस्केलिंग की है। और उस समय में जबकि हम कुछ 100 की संख्या में एक दिन में टेस्ट कर रहे थे, आज हमारी स्थिति ये हो गई कि आज से करीब 7-8 दिन पहले जब हम 5-6 हज़ार टेस्ट कर रहे थे, अब हमने कल 16,002 टेस्ट एक दिन में किए। और उससे भी एक लिंक्ड एक पॉजिटिव न्यूज मैं लाना चाहूंगा कि उसमें जो अगर टेस्ट हम देखें कि कितने पॉजिटिव आए तो करीब उसमें 0.2% केसेज ही पॉजिटिव पाए गए। तो ये फिगर डे टू डे वेरी होगी, बट जस्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नॉलेज कि हमारा जो इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शन रेट अगर हमने जो सैंपल्स कलेक्ट किए हैं उसमें उतना ज़्यादा नहीं पाया जा रहा है। इसके साथ ही जैसे आप लोगों की नॉलेज में हमने रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स को भी सैंक्शन दे दिया है, जिस एरिया में जिस प्रोसेस से यूज़ करना जाना चाहिए वह डिटेल भी हमने लोगों की निगाहों में लाए हैं और उसका ऑर्डर भी दिया जा चुका है, जिसको हम जल्दी से जल्दी वो सप्लाईज हम लोगों के पास अवेलेबल होगी, यह मैं आप लोगों को अवगत करना चाहूँगा। पीपीज और N95 और वेंटिलेटर्स के बारे में इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ। मैं फिर आप लोगों की नॉलेज में लाना चाहूँगा कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज थे, क्योंकि कई चीज़ें जो इंपोर्ट की जाती थी और इंपोर्ट बंद हो गया, लेकिन देश व्याप्त जो लेवल पर इसके बारे में हाईएस्ट लेवल से डे टू डे मॉनिटरिंग करके आज हम उस सिचुएशन में हैं कि पर्सनल प्रोटेक्शन के 39 मैन्युफैक्चरर्स देश में अवेलेबल हैं। और उसके साथ ही अगर आप देखें कि आज से 2 महीने पहले जो देश में स्थिति थी, जो स्टेट लेवल पर जो पीपीज अवेलेबल थे उसके दुगने पीपीज यानी कि उतनी ही क्वांटिटी में पीपीज हमने प्रोक्योर कर आज हमने सप्लाई भी स्टेट लेवल पर कर दिए हैं। हम उसको ऑगमेंट कर रहे हैं। यह मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि जो हमारे फील्ड स्थाई पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैं उन सबको आपके द्वारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसी तरह का डाउट, भय मन में ना रखें। गवर्नमेंट के लेवल पर जो रिक्वायर्ड एक्शन चाहिए, जो इस सिचुएशन में डिमांड करता है, उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शन लिया जा रहा है। N95 मास्क जैसे करीब 20 लाख मास्क देश में स्टेट लेवल पर अवेलेबल थे, तो हमने पिछले 2 महीने में ही
9 लाख मास्क स्टेट लेवल पर अवेलेबल थे, तो हमने पिछले 2 महीने में करीब 20 लाख मास्क स्टेट्स को एडिशनल प्रोवाइड किए हैं और इसके साथ ही प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुका है और हम आने वाले समय में समझते हैं कि N95 मास्क को लेकर भी किसी टाइप की कोई दिक्कत फील्ड पर नहीं होगी। वेंटिलेटर्स में इससे पहले बता चुका हूं, करीब 49,000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर भी हमने प्लेस कर दिया है और उनका प्रोक्योरमेंट के हिसाब से अब उनकी सप्लाईज भी आने वाले टाइम में शुरू हो जाएगी। तो कंट्री जिस टाइप के इस चैलेंज को डील कर रही है, उस चैलेंज को मैनेज करने के लिए हर तरह से हर यथासंभव तैयारी करते हुए उसके लिए तैयार है। 2 विषय मैं आपकी दृष्टि में फर्दर लाना चाहूंगा। एक ये विषय है कि इस लड़ाई में हमारे लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट, हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स। और जब वे हमारे लिए हर तरह की टेंशन, हर तरह के इन्फेक्शन के खतरे को झेलते हुए हमारी सेवा कर रहे हैं, तो उनसे किसी भी तरह का दुर्व्यवहार वह हम सबके लिए नुकसानदायक है। हमारे लिए जरूरी है कि हमारी वर्कफोर्स पूरी मोटिवेटेड होकर हमें सपोर्ट दे। आप सबको विदित होगा कि 5 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील के तहत हम सब लोगों ने अपने घर में कैंडल्स और लैंप जलाकर हमने उन सबका अभिनंदन किया था, उनका धन्यवाद किया था। मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो धन्यवाद हमने लाइट जलाकर किया है, उस धन्यवाद को हम अपने एक्शन में भी कन्वर्ट करें। अगर एक भी इंसिडेंट देश में कहीं पर भी उनसे दुर्व्यवहार की आती है, तो चाहे हम सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं, बट उस इंसिडेंट के हाईलाइट होने से हमारे फील्ड वर्कर्स का मोरल डाउन होता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी ऐसे कार्य कोई भी ना करे जिससे उनका मोरल और उनकी जो एक शक्ति है जिसके थ्रू हमें सपोर्ट दे रहे हैं उसमें कोई कमी आए। इसके साथ दूसरा एक और मुख्य अंश है अनवांटेड फियर और स्टिग्मा। मैं आप सब लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, किसी भी बीमारी की तरह यह भी एक बीमारी है, तो इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट हो, किसी की फैमिली में किसी मेंबर को कोई शक हो कि अगर उन्हें कोई ये बीमारी हो सकती है, उससे रिलेटेड सिम्टम्स हैं, तो प्लीज हमारी हेल्प करें। हेल्प अस टू हेल्प यू इज व्हाट आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग ऑल द टाइम। आप हमें बताएं, कोई भी सिम्टम का अनुभव होने पर हम यथासंभव आप सबके साथ मिलकर उस बीमारी का उसको टेस्टिंग करा के उसको कैसे हम निजात पा सकते हैं, उस पर हमें कलेक्टिवली काम करना है। इसमें किसी भी टाइप का डाउट ना रखें। बाहर आना बताना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करता रहा हूं कि यह संपूर्ण सरकार और समस्त समाज की लड़ाई है। यह एक इंडिविजुअल सरकार की या समाज अलोन की लड़ाई नहीं है। आप सबकी नॉलेज में है कि पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया इस लड़ाई से आज जूझ रही है। हम जितना कलेक्टिव होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे उतना ही बढ़िया ढंग से हम इसे जीत पाएंगे। और जैसे कि माननीय मंत्री जी कहते आ रहे हैं कि यह लड़ाई है जिसमें हमें सोशल वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में। और इस लड़ाई के लिए आप सबसे मेरी विनती है कि हम अपने देश की तरफ से एक एग्जाम्पल पूरी दुनिया को ये दिखाएं कि देश मिलकर लड़ा और इस लड़ाई से जीत चुका है। धन्यवाद। धन्यवाद। आईसीएमआर रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। नमस्कार। आईसीएमआर की तरफ से 2 अपडेट है। पहला अपडेट है टेस्टिंग के बारे में। जैसा कि बताया चुका कि वी करंटली हैव 213 लैबोरेटरीज दैट इंक्लूड्स 146 लैब्स इन पब्लिक सेक्टर एंड 67 लैब्स इन प्राइवेट सेक्टर। कल रात 9 बजे तक 1,44,910 सैंपल्स वर टेस्टेड फ्रॉम 1,30,792 सस्पेक्टेड पेशेंट्स, जिसमें से 5,705 वेर पॉजिटिव। कल 16,002 सैंपल्स टेस्ट किए गए एंड दिस हैज बीन सब्सटेंशियल इंक्रीज ओवर लास्ट फ्यू डेज। दूसरा अपडेट है टेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। जैसा आपने देखा होगा आईसीएमआर वेबसाइट में, yesterday we expanded our testing strategy further to include all symptomatic cases in hotspot areas. Thank you. थैंक यू। इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चन लें, 2 छोटी अनाउंसमेंट्स हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑन 26 मार्च अनाउंसमेंट किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम का। अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम रुपीज 280 crore have been withdrawn by 1.37 lakh employees from the EFO funds. The details are already there on the PIB website. The second announcement is about the Ministry of Railways. Media reports had been there about various railway protocols and prospective travelers by the trains. This premature reporting is leading to unnecessary and avoidable speculations. All concerned would be intimated at appropriate time. So first question from Nitendra.
सर, मेरा सवाल है नॉन कोविड पेशेंट को लेकर के। देश में करोड़ों ऐसे मरीज हैं जिनको फॉलोअप की ज़रूरत है, चाहे वो कैंसर के हो, टीबी के हों या फिर ब्रेन ट्यूमर के हों। इस तरह की सर्जरी हुई है, उनको फॉलोअप किया जा रहा है। कई दिनों से वो अस्पताल नहीं जा पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएं। चूँकि हेल्थ केयर वर्कर भी संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे में कई लोग ट्रीटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कंटीजेंसी प्लान है? सेकेंड, जो सारी का रिपोर्ट है, आईसीएमआर सवाल है कि सारी का जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि 40% लोगों का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, जो आपकी रिपोर्ट है, तो उसका क्लेरिफिकेशन जरा चाहिए। सर, एज फार एज जो हमारे बाकी पेशेंट्स हैं जो आज या जो हमारे लोग लॉकडाउन की स्थिति में घर पर हैं, उसके लिए हम लोगों ने और साथ में स्टेट लेवल पर भी बहुत सारे प्रयत्न चल रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि वह लोग बाहर निकलें और किसी भी तरह से इन्फेक्शन उनको लगे, तो उसके लिए हम लोग टेलीमेडिसिन और उस टाइप के डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी कहा है इसेंशियल सर्जरीज के अलावा इलेक्टिव सर्जरीज को पोस्टपोन किया जाए और बाकी टाइम आप अपने घर पर रहते हुए ट्रीटमेंट थ्रू डिफरेंट वेज, पर्टिकुलरली यूजिंग टेक्नोलॉजी, आप उसको प्राप्त करें। दूसरा, जैसे कि आपने आईसीएमआर की स्टडी के बारे में बताया, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, अगर देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगा तो वी विल बी द फर्स्ट वन। हम ही आपको आके पहले बताएंगे, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आपके नॉलेज में लाएं कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है और इस कारणवश हम सबको एक्स्ट्रा और एडिशनल अलर्ट रहना पड़ेगा। मैं 2 फिगर्स आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। एक, जैसे मैंने कहा कि अगर 16,000 टेस्ट कल हुए देश में, जो कि अक्रॉस द कंट्री हुए, उसमें करीब 320 ही पॉजिटिव आए, तो यानी कि 0.2% केसेस ही पॉजिटिव आए। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, ये स्टडी जिसमें बताया गया है कि हमने अगर सारी केसेस यानी कि रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस की रैंडम सैंपलिंग अगर देश में की है, तो उसमें करीब 1.8% केस पॉजिटिव आए हैं। तो इसमें आपको ये समझना होगा कि ये 1.8% पॉजिटिव जो केसेस आए, दीज आर फ्रॉम द आवर VRDL लैब्स। जो हमारी VRDL लैब्स प्राइमरली उन्हीं एरियाज में लोकेटेड जहां पर ऑलरेडी केसेस पाए जा चुके हैं। इस स्टडी में आपको कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ये ऐसे एरिया में आया जहां सिंगल केस भी नहीं पाया गया, तो ये उन्हीं एरिया में पाए गए हैं जहां केसेस पाए गए हैं। वेरी फैक्ट कि अगर ये स्टडी इंडिकेट करती है कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में कॉन्टैक्ट की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, तो इट ओनली नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन कि हम उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को फर्दर लोकेट करें। और साथ में, जैसे आप लोगों की नॉलेज में इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, कुछ हमारे एरियाज हैं जहां केसेस का नंबर थोड़ा बढ़ जाता है, तो उन केसेस में कई बार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सही ढंग से हो नहीं पाती। तो फिर मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, देश में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, उतनी भय की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अवेयर रहना है, हमें अलर्ट रहना है और रिक्वायर्ड डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है।